I think now I'm audible. Yes, sir. Now you are audible. हाँ, so ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन की वजह से मैं एक्चुअल में से लेक्चर स्टार्ट किया था एंड वहाँ पे थोड़ा कनेक्टिविटी इश्यू था. सो नाउ आई एम एट माय प्लेस एंड वी कैन स्टार्ट अवर टॉपिक, राइट? Okay, so what we have seen in last lecture, and one more thing, I hope you all have received mail if you have already filled consent letter, right? So from today you can attend your lecture lab from campus if like conditions written in mail is fulfilled by you regarding vaccination and consent letter. Okay, so without wasting further time, we have seen about recurrences in last lecture, right? So I hope now you all are aware about these equations, right? Few examples we have seen like binary search. There are four methods: iteration method, substitution method, recursion, tree method, and master method, right? So this was the last topic that we have seen in last lecture, right? So now, as I have told in last lecture, the substitution method and master method is in your syllabus. So we will see these two techniques in detail, but definitely we will see iteration method and recursion tree method, right? So you will be aware about that method. So your first method is iteration method. Yeah, but the solution of substitution method and master method will be asked in detail. Like you may need to solve some kind of example, okay, and based on example, you need to find the complexity. So your first technique is iteration method. Convert the recurrence into a summation and try to bound it using known series. See, basically, नाम के ऊपर से you can understand what kind of method will be in this iteration method, right? So basically, what we need to do, convert the recurrence into a summation. जो भी recurrence है, recurrence में क्या करते थे? We need to convert your equation into this format: Tn is equal to Tn minus 1 plus n or Tn is equal to Tn by 2 plus c. इस तरीके से अगर आपका एल्गोरिथम अपने आप को रिकॉल कर रहा है, then only you can consider it in a recurrence. अब उसका सॉल्यूशन आपको इटरेशन से प्रोवाइड करना है, राइट? तो इटरेशन मतलब जो भी आप फॉर लूप, व्हाइल लूप या कोई भी जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसको आप रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है? सो यहाँ पे आपका जो रिकरेंस है उसको आपको समेशन में कन्वर्ट करना है, ट्राई टू बाउंड इट यूजिंग नोन सीरीज. सी, वो कभी इनफाइनाइट में नहीं जाना चाहिए. जो भी उसकी टर्मिनेशन कंडीशन हो वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, राइट? और वो समेशन में जाना चाहिए. समेशन का मतलब क्या है कि जैसे वहां पे था Tn is equal to Tn minus 1. So initially you are taking your problem size equal to n and gradually you are decreasing your problem size. ठीक है, ठीक है. So in that case, definitely at some point it will reach to threshold value. जैसे आप n greater than 1 लिख दो, n greater than 5 लिखो, n greater than 10 लिखो, n greater than equal to 1 0 लिखो, जो भी है. मान लो कि नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए है तो 0 विल बी योर थ्रेशोल्ड वैल्यू. मान लो कि पॉजिटिव नंबर है तो 1 विल बी योर थ्रेशोल्ड वैल्यू. ठीक है, n greater than 10 भी लिख सकते हो आप, डेफिनेटली, राइट? सो यू नीड टू कन्वर्ट योर रिकरेंस इनटू अ समेशन and try to bound it using known series. जो भी known series है उससे उसको bound करना है, right? तो iterate the recurrence until the initial condition is reached. तो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया कि नॉन नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है या ग्रेटर देन 10 है, जो भी है, that will be your initial condition. ठीक है, तो हमें रिवर्स वे में ऑलवेज जाना है, राइट? तो यूज बैक सब्स्टिट्यूशन टू एक्सप्रेस द रिकरेंस इन टर्म्स ऑफ n एंड इनिशियल कंडीशन. आपको n से स्टार्ट करके फिर इनिशियल कंडीशन पर आना है. आपको कंपलसरी बैक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है. n will be replaced by n minus 1. n minus 1 में n will be replaced by again n minus 1. So ultimately n minus 1 will be replaced by n minus 2. Then n minus 2 will be replaced by n minus 3, minus 4, minus 5 and so on. राइट? कब तक हमें ये प्रोसेस को फॉलो करना है?
जब तक यू आर नॉट रीच टू योर इनिशियल कंडीशन, दैट इज योर बाउंड्री कंडीशन। एक बाउंड्री फिक्स करके रख दी है, यू विल स्टार्ट फ्रॉम n एंड यू विल रीच टू योर इनिशियल कंडीशन इन बैक सब्स्टिट्यूशन वे, ठीक है। सो गॉट द इटरेशन मेथड, इसका कोई एग्जांपल आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो पूछा जाएगा, ठीक है। इसका मेन रीजन ये है कि दिस टेक्निक्स इज नॉट सो मच इफेक्टिव, ठीक है। हमें ऐसी टेक्निक को फॉलो करना है दैट कैन बी अप्लाइड टू मेजॉरिटीली ऑफ द प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे यू कैन नॉट अप्लाई इट टू मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे इटरेशन मेथड वर्क कर सकती है बट नॉट फॉर मेजर क्लास, ठीक है। तो हमें जहाँ पे उसके एप्लीकेबल जो भी मेथड है वी कैन अप्लाई इट टू द लार्ज मास, देन वी कैन कंसिडर इट एज अ यूनिवर्सल मेथड, ठीक है। तो डेफिनेटली इट इज अ टेक्निक बट इट इज एप्लीकेबल टू सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स, राइट। तो यहाँ पे कुछ हमें ऐसा करना है कि मान लो कि Tn इज इक्वल टू C प्लस Tn/2, इस तरीके से योर रिकरेंस इक्वेशन इज गिवन, राइट। सो डेफिनेटली वी कैन पुट इट इनटू अगेन एंड अगेन, जैसे यहाँ पे Tn इज इक्वल टू C प्लस Tn/2 इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी आर रिप्लेसिंग Tn/2 विथ अगेन सेम इक्वेशन, मतलब यहाँ पे सेम इक्वेशन में आपको n जहां पे भी दिख रहा है सिंपली रिप्लेस n बाय n/2, ठीक है। n की बजाय आपको रिप्लेस करना है n डिवाइड बाय 2, राइट। तो जहां पे भी n है वहां पे n डिवाइड बाय 2 आपको रिप्लेस करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी n विल बी रिप्लेस बाय n डिवाइड बाय 2, सो n डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 4, राइट। सो बेसिकली T of n/2 is equal to C plus Tn/4. Similarly, Tn/4 को हम रिप्लेस कर सकते हैं C Tn/8, राइट। अब ये तो प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, ठीक है, जब तक आपकी इनिशियल कंडीशन फुलफिल ना हो तब तक। सो एज्यूम n इज इक्वल टू 2k, राइट, क्योंकि हमें उसको क्या करना है, ट्राई टू बाउंड इट यूजिंग नोन सीरीज, कोई भी नोन सीरीज से उसको हमें बाउंड करना है। तो 2k इज द नोन सीरीज, सो एज्यूम n इज इक्वल टू 2k। नाउ Tn इज इक्वल टू C प्लस अप टू प्लस T ऑफ 1। ये आप डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 कब तक कर सकते हो, जब आप इनिशियल कंडीशन पे ना पहुंच जाओ तब तक। अब आपकी इनिशियल कंडीशन क्या होगी, सपोज आपको स्पेसिफिकली दिया हो, जैसे यहाँ पे मान लो कि आपको ऐसा कुछ दिया है कि n ग्रेटर देन 10, देन डेफिनेटली योर इनिशियल कंडीशन, मतलब n की मिनिमम वैल्यू 11 होनी चाहिए। मान लो n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिखा है तो योर मिनिमम वैल्यू विल बी 10। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो जो हमें नॉन नेगेटिव नंबर को कंसिडर करना है वो कंडीशन तो ऑलवेज एप्लीकेबल रहती है, ठीक है। सो दैट कंडीशन वी नीड टू अप्लाई, अगर स्पेसिफाई ना किया हो तो, राइट। तो योर मिनिमम वैल्यू विल बी 1, सो T ऑफ 1 विल बी योर लास्ट वैल्यू, क्योंकि 1/2 अगर करने गए तो 0.5 हो जाएगा, अगेन वो Tn ऑफ 1 बन जाएगा, राइट। सो T ऑफ 1 को आप जितनी भी बार रिकरेंस अप्लाई करोगे वो वापस T ऑफ 1 में ही हमें मिलने वाला है, ठीक है। सो अब C जो है दैट इज कांस्टेंट, वो हमें कितनी बार मिलेगा, k टाइम्स। क्यों, क्योंकि वी हैव एज्यूम n इज इक्वल टू 2k। अब आप सोचोगे सर ये n इज इक्वल टू 2k ही क्यों लेना है, राइट। सो यहां पे आपको क्या दिया गया है कि योर प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर मान लो कि n की वैल्यू 50 है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में n की वैल्यू 25 होने वाली है, उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में 13 होने वाली है, उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में 7 होने वाली है, उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में 4 होने वाली है, ठीक है। तो 4 के बाद 2, 2 के बाद 1 एंड देन स्टॉप। अब यहां पे उसके कितने इटरेशन हुए, लेट्स काउंट। सबसे पहले क्या मिला, 50 तो आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ठीक है। सो 50 विल बी कन्वर्टेड इनटू 25, तो 1 स्टेप, देन 13, स्टेप 2, स्टेप 3, 7, स्टेप 4, स्टेप 5, 2, स्टेप 6,
1। अब आप 2�6 कैलकुलेट करो। 2�6 कितना होता है? हाँ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2�6? 64. और 2�5? 32. So your value is between 32 and 64. ठीक है, मान लो कि मैं 50 की बजाय 60 ले रहा हूं। ठीक है, तो स्टेप 1 में 30, स्टेप 2 में 15, स्टेप 3 में 8, स्टेप 4, स्टेप 5 2, स्टेप 6 1, अगेन 6 स्टेप्स। सो आप 30 से ग्रेटर और 64 से लेस देन कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हो तो यू नीड टू कैलकुलेट इन 6 अटेम्प्ट। टोटल 6 स्टेप आपको लगेंगे यूजिंग रिकरेंस इक्वेशन। आप 32 लोगे तो 5 स्टेप में हो जाएगा। कैसे? 32 के बाद 16, 16 के बाद 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 5 स्टेप लगेंगे। ठीक है, तो योर सी विल बी मतलब वो 5 बार आपको मिलेगा। लेकिन अगर वो 33 से लेकर 64 तक कोई भी वैल्यू है तो आपको 6 टाइम मिलेगा। राइट, सो दैट्स व्हाई वी हैव एज्यूम्ड n इज इक्वल टू 2⁻k। ठीक है, तो जिस तरीके का आपका रिकरेंस होगा उस तरीके से आपका अजम्पशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 6 टाइम c मिलने वाला है अगर मेरी n की वैल्यू 50 या 55 या 60 ऐसी कुछ भी है तो। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? c log n, क्योंकि 2⁻k मींस नेचुरल लॉग मिलेगा हमें। ठीक है, सॉरी नेचुरल लॉग नहीं, बेस 10 वाला लॉग मिलेगा। राइट, प्लस t of 1 which is equal to theta of log n. Right, so that will be your complexity. Right, so ये हमें इटरेशन मेथड से मिल रहा है। मोर स्पेसिफिकली मेथड जो है वो जो मैंने आपको दो बताई उसमें डिफाइन करके दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पे 2tn/2 के लिए भी आप डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको आगे भी 2 का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई योर फाइनल इक्वेशन विल बी kn प्लस 2⁻k t1। सो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है थीटा ऑफ n log n आपको मिलेगी। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जो कुछ नॉन रिकरेंसेस है उसके इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद रह सकते हैं। क्योंकि सी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे जो मैंने जो पार्ट 1 में लास्ट एक ग्राफ आपको शो किया था, याद है? 2⁻n, n log n, n स्क्वायर, n क्यूब, n, ये सारे उसमें स्टैंडर्ड 6-7 वैल्यूज वहां पे थी। सो ये जो वैल्यूज है दैट आर नोन वैल्यूज, कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जहां पे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसी में से कुछ मिल रही है। राइट, सो we need to consider that time complexity as a standard complexity, but it doesn't mean कि आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं से मिलेगा आपको। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज ऐसी है कि जो पॉसिबल है। ठीक है, सो उसके लिए हमें ये सारे मेथड्स में से कोई ना कोई मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। अब यहां पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट वन इज द गेस अ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन को लाइक जनरल गेसिंग के ऊपर चलेंगे। जैसे मान लो कि t of n इज इक्वल टू n प्लस 2tn/2 है, तो वी कैन प्रेडिक्ट कि भाई कुछ थीटा ऑफ n log n जैसा हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 2tn/2 की बजाय मान लो 3tn/2 है या ऐसा कुछ भी है, तो वहां पे एक जनरल परसेप्शन से हम थीटा ऑफ n log n assumption लेकर आगे बढ़ेंगे। And then in second step use induction to prove that the solution works. ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडक्शन को यूज करेंगे, इंडक्शन थियरम जो मैथमेटिक्स में आता है। ठीक है, that theorem using that theorem we will prove that कि भी जो हमारा assumption है, जो गेसिंग है वो सही है। ठीक है, अगर वो गलत होगा तो डेफिनेटली आपको गलत दिखाएगा, तो यू नीड टू गेस द अनदर वैल्यू। अब ये प्रोसेस कैसे करनी है, लेट्स सी। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में योर फर्स्ट स्टेप विल बी गेस द सॉल्यूशन। सो t ऑफ n अगर है तो उसको हमें ऑर्डर ऑफ g ऑफ n कंसीडर करना है।
अब इंडक्शन का गोल क्या है? अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ द असिम्प्टोटिक नोटेशन। जी ऑफ एन की असिम्प्टोटिक नोटेशन से डेफिनेशन मुझे क्या मिल रही है? टी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू डी जी ऑफ एन फॉर सम डी ग्रेटर देन 0 एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन 0। अब यहां पे मैं बिग ओ नोटेशन यूज कर रहा हूं। सो बिग ओ नोटेशन गिव्स अस लोअर बाउंड और अपर बाउंड। अपर बाउंड। राइट। सो वहां पे आपको एज पर डेफिनेशन सी, इसीलिए मैं आपको जो 3 डेफिनेशन थी उसके ऊपर बहुत बार फोकस किया है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्टली वो डेफिनेशन को ही यूज कर रही है। सो एज पर डेफिनेशन हमारा जो सॉल्यूशन है इट विल वर्क फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। तो हमें यहाँ पे अपर बाउंड मिल चुका है कि भाई n0 से ऊपर की वैल्यूज के लिए हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिलने वाली है, ठीक है। एंड वी नीड टू कंसीडर सम डी जो वहां पे सी था, ठीक है। ऐसा कोई डी हमें चाहिए कि जिसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, राइट। अब इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या बनेगा? सिंपली वी नीड टू रिप्लेस n बाय k, n की बजाय k रख दो, दैट्स इट। तो उसके हिसाब से आवर इंडक्शन हाइपोथेसिस विल बी टी के लेस देन इक्वल टू डी इंटू जी के फॉर ऑल k लेस देन n। That is considered as strong induction. अगर ये जो कंडीशन है वो स्ट्रांगली फुलफिल होती है, then we can consider it as a strong induction. Right? ये हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस बना। अब हमें इसको ट्रू प्रूव करना है, तो that will be your second step. Prove the induction goal. Use the induction hypothesis to find some values of constant d and n0 for which induction goal holds. ठीक है, हमें ऐसी कुछ पैर फाइंड आउट करनी है d और n0 की, जिसके लिए ये जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू साबित हो। अगर हम ऐसी कुछ वैल्यूज आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल रहते हैं, देन वी कैन कंसीडर इंडक्शन हाइपोथेसिस एज ए ट्रू। अगर वो ट्रू है सो डेफिनेटली हमें हमारा जो सॉल्यूशन है वो मिल चुका है, जो हमने एज्यूम किया था। ओवरऑल प्रोसेस समझ में आई किस तरीके से इसको सॉल्व करना है? दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। लेकिन प्रोसेस आपको समझ में आई कि क्या हमें करना है? ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मोस्ट ऑफ द पेपर में इसका कुछ ना कुछ अब पूछा जाएगा, आइदर 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन और मे बी 4-5 मार्क क्वेश्चन, बट कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा, राइट। ये मेथड्स में से सब्स्टिट्यूशन या मास्टर कुछ भी, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछा गया है तो 110% मास्टर मेथड होगी। अगर मास्टर मेथड नहीं है तो 110% सब्स्टिट्यूशन होगा, या फिर दोनों का ही ऐसे एक दो मार्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है। देयर इज अ जीरो पॉसिबिलिटी कि इस टॉपिक में से आपको कुछ ना पूछा जाए, इसकी जीरो पॉसिबिलिटी है। अंडरस्टैंड द प्रोसेस एवरीवन? यस सर। ओके, सो वी विल सी एग्जांपल इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं, सो नेक्स्ट लेक्चर में वी कैन स्टार्ट एग्जांपल डायरेक्टली। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, सी ये जस्ट एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये प्रोसेस कैसे है, इट इज नॉट अ फुल फ्लेज एग्जांपल, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर एग्जांपल बाइनरी सर्च। सो वहां पे हमें रिकरेंस इक्वेशन मिलेगा t ऑफ n इज इक्वल टू c प्लस t ऑफ n बाई 2। यहाँ पे हम एक एजम्पशन लेते हैं कि भाई t ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ log n। ये कैसे हमने गेस किया? ये वाले इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये सी जो कुछ स्टैंडर्ड टर्म है ना वो आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी, ऐसे हार्डली 5-7 ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो t ऑफ n इज इक्वल टू c प्लस t ऑफ n बाई 2, उसके लिए हम एजम्पशन करेंगे t ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ log n। अब इंडक्शन गोल हमारा क्या बनेगा? सो t ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू d इंटू log n फॉर सम d एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। So our induction hypothesis will be t of n by 2 less than equal to d into log n by 2, right? और उसका प्रूफ है t of n is equal to t of n by 2 plus c less than equal to d into log n by 2 plus c,
which is equal to d log n minus d plus c less than equal to d into log n if minus d plus c less than equal to 0. ये पूरी प्रोसेस हम डिटेल में सीखने ही वाले हैं. सो करंटली हम उसको स्किप करते हैं क्योंकि just theoretically it is hard to understand, right? So we will see step by step. ये उसका दूसरा एग्जांपल है, right? जब हम फुल फ्लेज एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में देख ले उसके बाद इसको समझना. आई विल शेयर पीपीटी विथ यू, ठीक है? जस्ट अ मिनट. बोलो. HVJ HS है तो जयसवाल. हाँ हाँ ओके ओके. हाँ 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 तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देकर रखे हैं. जब हम डिटेल में एग्जाम्पल देखेंगे उसी टाइम पे ये सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे, राइट? नेक्स्ट टेक्निक इज रिकर्जन ट्री मेथड. अगेन सिर्फ थियोरेटिकली ये मेथड को आपको स्टडी करना है. इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आपका रिकरेंस है उसको ट्री फॉर्मेट में ले रहे हैं, ठीक है? जैसे n के ऊपर से हम n/2 पर आए, n/2 के ऊपर से n/4 गए, n/8, n/16 and so on. So each node represents the cost incurred at various levels of recursion. मतलब n को अगर मुझे n/2 प्रॉब्लम साइज पे ले जाना है, देन कुछ स्टेप मुझे अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे आप क्विक शॉट का एग्जांपल ले लो. क्विक शॉट में हम क्या करते हैं कि पाइवट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं. पाइवट एलिमेंट से लेफ्ट में स्मॉलर एलिमेंट, राइट में लार्जर एलिमेंट. अब इस तरीके से हम अपने जो प्रॉब्लम साइज है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं. बट ये सारे स्टेप्स में भी कुछ तो कॉस्ट लगेगी, उसके लिए कुछ तो एग्जीक्यूशन टाइम होगा, कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा, कुछ रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होंगे. सो दैट विल बी कंसीडर एज अ कॉस्ट, ठीक है? तो ट्री का हर लेवल इस कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा और उसका जो टोटल होगा उसका हमें एडिशन करना है. दैट विल बी योर टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अंडरस्टैंड? सो मतलब इनिशियली मान लो, अगेन जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था उसको कंसीडर करते हैं. मान लो कि आप 50 प्रॉब्लम साइज ले रहे हो और आपको दिया गया है t of n is equal to t of n/2 plus c. सो t of n/2 में आपको क्या मिलेगा? 50 से 25, 25 से 13, 13 से 7, 7 से 4, 4 से 2, 2 से 1. 1 आपका लीफ नोड बन गया, राइट? अब ये जो हर स्टेप है 50 को 25 में कन्वर्ट करना या तो 25 को 13 में कन्वर्ट करना, उसके लिए जो भी कॉस्ट लग रही है वो सारी कॉस्ट हर एक नोड पे आपको मेंशन करनी है और उसका फिर टोटल कैलकुलेट करना है. सो जो भी आपको टोटल मिलेगा दैट विल बी कंसीडर एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर t of n. ये जो भी हमारा रिकरेंस इक्वेशन हमको मिला हुआ है उसकी टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है लेवल बाय लेवल, राइट? सो यूज टू गेस अ सॉल्यूशन फॉर द रिकरेंस. ये जो टेक्निक है वो वहां पे यूज हो सकती है, ठीक है? जो यहाँ पे आपका मतलब था कि मान लो कि स्टैंडर्ड जो भी वैल्यूज है 5-7 वैल्यूज के अलावा अगर मान लो कि आपको कोई वैल्यू देकर रखी और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, तो आप ये फर्स्ट स्टेप कैसे परफॉर्म कर सकते हो? तो एट दैट टाइम आपको ये टेक्निक यूज हो सकती है, रिकर्जन ट्री मेथड, ठीक है? तो रिकर्जन ट्री मेथड को हम इंडिविजुअली जनरल यूज नहीं करते हैं, बट हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू आपको देकर रखी है और आपको गेसिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही है, सो एट दैट टाइम यू कैन यूज रिकर्जन ट्री मेथड टू गेस द सॉल्यूशन. लेकिन उसको इंडक्शन हाइपोथेसिस से ट्रू साबित करना होगा. सिर्फ और सिर्फ रिकर्जन ट्री मेथड के बेस पर आप वो आंसर नहीं लिख सकते हो, समझे? तो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू देकर रखी है आपको, तो जो भी आपके पास लाइक एक लिस्ट है उसमें से जो भी सॉल्यूशन है उसको आप गेस कर सकते हो. अगर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू देकर रखी है तो रिकर्जन ट्री मेथड का यूज करके आप एक नियरर सॉल्यूशन पे जा सकते हो
और उस सॉल्यूशन को कंपलसरी इंडक्शन एल्गोरिथम से ट्रू प्रूव करना है। अगर ट्रू प्रूव होता है देन ओनली यू कैन कंसीडर इट एज अ फाइनल सॉल्यूशन, अदरवाइज सिंपली रिकर्जन ट्री मेथड के बेस पर उसको आप ट्रू प्रूव नहीं कर सकते हो और करना भी नहीं। ठीक है, नाउ एवरीवन अंडरस्टूड? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वहां पे आपको ये स्टेप में गड़बड़ हो सकती है कि भाई सर गेस कैसे करना है, वी डोंट नो, राइट? तो आप उसके लिए ये मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उसका एक छोटा सा एग्जांपल देकर रखा है, राइट? कि n स्क्वायर अगर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो n/2 स्क्वायर n/2 स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे आपका जो साइज है इट विल बी रिड्यूस एट ईच लेवल। ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट है वो राइट हैंड साइड में मेंशन करके रखी है, राइट? n स्क्वायर देन 1/2 n स्क्वायर 1/4 n स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर हम करते जाएंगे तो योर फाइनल कॉस्ट विल बी थीटा ऑफ n स्क्वायर, राइट? तो हम इसको यहाँ पे योर फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बिग और थीटा नोटेशन दोनों की ही वैल्यू हमें n स्क्वायर मिल रही है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम में पॉसिबल होगा कि थीटा और बिग और नोटेशन की वैल्यू सेम मिल सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों की वैल्यू अलग ही मिले। ठीक है, कुछ एग्जांपल में सेम मिलेगी, कुछ एग्जांपल में अलग मिल सकती है, राइट? तो सिमिलरली 3tn/4 प्लस cn स्क्वायर, राइट? तो अगेन यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम साइज है वो एट ईच लेवल डिवाइड हो रही है, क्योंकि 3tn/4 है, सो वी विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट। तो जरूरी नहीं है कि भाई ट्री में बाइनरी ट्री ही हो, ऐसे टर्नरी ट्री भी हो सकती है, 3 उसके चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, एट ईच लेवल, राइट? 4-5 भी हो सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि 2 या 3 ही हो, राइट? उसी का सब्स्टिट्यूशन फिर हमें प्रूव करना है। ये पूरी प्रोसेस वी विल सी इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो इतना आज के लिए इनफ है। जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर रहा था कुछ बचे नहीं, सो वी कैन स्टार्ट एग्जांपल डायरेक्टली इन नेक्स्ट मेथड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मास्टर मेथड पूरी अलग मेथड है, सो सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स वगैरह देखने के बाद वी विल स्टार्ट मास्टर्स मेथड। सो अभी मैं आपको उसकी थियरी भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पूरा सब्स्टिट्यूशन खत्म होने के बाद ही वी विल स्टार्ट मास्टर थियरम, राइट? बिकॉज वहां पे पूरा डिफरेंट अप्रोच यूज किया गया है। एंड 1, 2 एंड 3 टेक्निक्स आर मतलब पार्शियली इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, राइट? ठीक है, एंड आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर आई विल शेयर दिस पीपीटी विथ यू। तो ये जो टॉपिक में है थोड़ा सा पैरेलल स्टडी करते जाना, क्योंकि पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेरी सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो पैरेलली आपकी कुछ क्वेरीज अगर निकलती है तो वी विल सॉल्व इन बिटवीन। ठीक है, सो चैप्टर खत्म होने के पहले आपकी क्वेरीज भी सॉल्व हो जानी चाहिए, राइट? So thank you all. You may leave now.